بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اسلام آباد طرز کا ایم ٹیگ سسٹم لانے کی سفارشات تیار۔ لاہور کی گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کی تیاری شروع۔ ایم ٹیگ کے ذریعے گاڑیوں کا مکمل ریکارڈ آن لائن دستیاب ہوگا۔ ایم ٹیگ نمبر پلیٹ پر نصب الیکٹرانک چپ ہوگی۔ ایم ٹیگ سے چوری شدہ گاڑیوں کی فوری نشاندہی ہو سکے گی۔ لاہور میں تمام گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگے گا۔ لاہور پولیس نے ایم ٹیگ سسٹم لانے کی سفارشات تیار کر لیں۔ ایم ٹیگ نمبر پلیٹ پر نصب الیکٹرانک چپ ہوگی۔ ایم ٹیگ کے ذریعے گاڑیوں کا مکمل ریکارڈ آن لائن دستیاب ہوگا۔ لاہور پولیس نے ایم ٹیگ کے حوالے سے سفارشات کی سمری ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی۔ ایم ٹیگ سے چوری شدہ گاڑیوں کی فوری نشاندہی ممکن ہوگی۔ ایم ٹیگ سسٹم سے جعلی نمبر پلیٹس کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی میں مدد ملے گی۔ ایم ٹیگ سے شہر میں داخل ہونے والی اور شہر سے جانے والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ ایم ٹیگ سسٹم سے ٹریفک مینجمنٹ اور شہری سیکیورٹی بہتر بنائی جائے گی۔ تعلیم کا حال یا بدحالی کا جال؟ 48% سرکاری اسکول کھیل کے میدانوں سے محروم ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں کہیں بجلی تو کہیں دیواریں غائب۔ 11% اسکولوں میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہے۔ سرکاری اعداد و شمار نے پول کھول دیا۔ کیا ہمارے بچے ان کھنڈرات نما اسکولوں میں پڑھیں گے؟ سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان۔ لاہور سمیت پنجاب کے 48% سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان ہی نہیں۔ 12% اسکولوں میں سیوریج کا نظام بھی موجود نہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی اسکول شماری کی رپورٹ نے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کی کمی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2% سرکاری اسکولز میں باؤنڈری وال ہی موجود نہیں۔ 1% اسکولز میں بجلی اور 1% اسکولز میں پانی کی سہولت میسر نہیں۔ اسی طرح 1% اسکولز میں تاحال ٹوائلٹ نہیں۔ دوسری جانب محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اسکولز میں سہولیات فراہمی کے لیے کام جاری ہے۔ تمام اضلاع کو بجٹ بھی جاری کیا جا چکا۔ سی ای اوز کو 3 ماہ میں سہولیات کا فقدان دور کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں میٹرک کے سالانہ امتحانات 2026 تاخیر سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ لاہور بورڈ کے تحت امتحانات 27 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ امتحانات عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں مربوط امتحانات کے لیے نئے قواعد نافذ کر دیے گئے۔ 4 سال بعد 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے لیے پیکٹا نے پہلی بار امتحانی مراکز کے لیے اسکول میپنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ رواں سال رمضان المبارک کے باعث میٹرک سالانہ امتحانات 2026 تاخیر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور بورڈ کے تحت میٹرک سالانہ امتحانات 27 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ میٹرک سالانہ امتحانات عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوں گے۔ لاہور بورڈ نے 27 مارچ سے امتحانات شروع کرنے کی اجازت مانگ لی۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کی منظوری کے بعد میٹرک سالانہ امتحانات کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسری جانب پنجاب میں مربوط امتحانات کے لیے نئے قواعد نافذ۔ 4 سال بعد 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے لیے پیکٹا نے پہلی بار امتحانی مراکز کے لیے اسکول میپنگ کا آغاز کر دیا۔ 8ویں جماعت کے امتحانی مراکز میں طلبہ کی کم از کم تعداد 50، زیادہ سے زیادہ 300 مقرر کی گئی۔ طلبہ کے لیے امتحانی مرکز اسکول سے 10 کلومیٹر کے دائرہ کار میں ہوگا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے امتحانات علیحدہ علیحدہ امتحانی سینٹرز ہوں گے۔ اسکول بیسڈ امتحانی مرکز کے انتخاب کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسکول میپنگ اور امتحانی ڈیٹا آن لائن ایپ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ غریب اور مڈل کلاس طبقے سے مرغی بھی دور ہونے لگی۔ 11 روپے اضافے سے مرغی کے گوشت کی قیمت چھٹی سینچری کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت 595 روپے کلو ہو گئی۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں دکاندار منمانی قیمتوں پر پھل اور سبزیاں فروخت کر رہے ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس طبقے سے مرغی بھی دور ہونے لگی۔ 11 روپے اضافے سے مرغی کے گوشت کی قیمت چھٹی سینچری کے قریب پہنچ گئی۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت 595 روپے کلو ہو گئی۔ شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صافی گوشت 700 روپے کلو کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ مارکیٹ میں زندہ برائلر کے نرخ بھی بلند سطح پر ہیں۔ فارم ریٹ 383 روپے، تھوک 397 روپے اور پرچون سطح پر زندہ برائلر 411 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح انڈوں کی قیمت 320 روپے فی درجن ہو گئی۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں دکاندار منمانی قیمتوں پر پھل اور سبزیاں فروخت کر رہے ہیں۔ پیاز کی سرکاری قیمت 55 روپے، بازار میں 100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر دیسی کی سرکاری قیمت 65 جبکہ بازار میں 120 روپے کلو۔ لہسن دیسی کا سرکاری نرخ 150 جبکہ اوپن مارکیٹ میں 180 تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ امرود کی سرکاری قیمت 120 جبکہ بازار میں 180۔ موسمی کی سرکاری قیمت 156 جبکہ بازار
حصار میں 300 درجن، کنو درجن سرکاری قیمت 210، بازار میں 350 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ بھاری جرمانوں کے باوجود ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ شہریوں نے پنڈی اسٹاپ پیکو روڈ ون وے کی خلاف ورزی معمول بنا لی۔ شارٹ کٹ کے چکر میں متعدد موٹر سائیکل سوار ون وے سے گزرنے لگے۔ شہریوں کی بے احتیاطی کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں۔ بھاری جرمانوں کے باوجود ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مزید احوال جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر بتائے گا۔ شہر لاہور میں ون وے کی خلاف ورزی کا سلسلہ نہ تھم سکا ہے اور شہر کی متعدد ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی جو ہے وہ ناممکن ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی شاہراہیں ہیں جس میں پنڈی اسٹاپ ایک بہت ہائی لائٹڈ ایریا ہے جو سگنل فری روڈ بھی ہے اور یہاں پر شارٹ کٹ راستہ صرف کچھ منٹ کا فاصلہ ہے جو کراس کرنے کے لیے لوگ ون وے راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس ون وے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور یہاں سے جو پیچھے روڈ ہے اس کو شارٹ کٹ لینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنا ون وے اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھیں تو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں اور حادثات بھی رونما جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے شہری جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں ہیلمٹ کے اوپر بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، اسی طرح اگر ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تو یقیناً اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب پنڈی اسٹاپ سگنل فری روڈ ہے، یہاں پر ٹریفک کی رفتار جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ آگے سے یو ٹرن لینے کی بجائے وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر وارڈن بھی موجود نہیں ہے جو اس کو روک سکیں اور یہی ٹھیک ہے، شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، ہر مہینے 10% جرمانہ، کمرشل پراپرٹیز کی سربے مہری، جائیداد کلکی کی تیاریوں کے لیے نوٹس بھجوانا شروع کر دیے گئے۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 50% پراپرٹی مالکان نے ٹیکس ادا کیا ہے، باقی ماندہ 50% ٹیکس نادہندگان کو حتمی نوٹسز کا اجرا شروع کر دیا گیا۔ پراپرٹی ٹیکس کے 30 ارب کے ہدف میں لاہور سے 8 ارب جبکہ صوبہ بھر سے 18 ارب وصول کیا جا چکا ہے۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پہلی دفعہ 4 ماہ 5% رعایت دی گئی۔ رعایت کے باوجود ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ سربہ مہری کرکی کے ساتھ ساتھ ہر مہینے 10% جرمانہ بڑھتا جائے گا۔ تقریباً 50% جو اربن ایریا کے ریزیڈنٹس ہیں اور کمرشل پراپرٹیز ہیں انہوں نے پراپرٹی ٹیکس پے کر دیا ہے۔ اس میں ہم بہت مشکور ہیں ان لوگوں کے، ان کے تعاون کے کہ جو والنٹری ٹیکس پیئرز تھے ان سے ہمیں 60% آف ہمارے ریونیو ٹارگٹس پنجاب میں اچیو ہو گئے اور آج ہم 45 بلین روپیز کلیکٹ کر چکے ہیں آل لیویز کے، جس میں پراپرٹی ٹیکس کا 18 ارب بھی شامل ہے اور اس کے لیے اب جو ریمیننگ 6 منتھس آف دا ایئر ہے اس میں ہمیں کوئرسو میئرز کی طرف جانا پڑے گا اور جن لوگوں نے پراپرٹی ٹیکس پے نہیں کیا، دیگر اپنی گاڑیوں کے ٹیکس پے نہیں کیے، تو ہم ان کے ریپیٹڈلی ڈور ناک کریں گے، ہم انہیں نوٹسز دیں گے۔ کمرشل پراپرٹیز کے لیے ہمیں اگر پہلی، دوسری اور تیسرے نوٹس پہ بھی کوئی نہیں دیتا تو ہمیں پراپرٹیز سیل کرنی پڑیں گی، اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز کی طرف جانا پڑے گا۔ اب یہاں پر بات کریں گے فیروز پور روڈ مصطفی آباد کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے بننے سے علاقہ مکین دور دراز سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں۔ گھریلو نلکوں میں سیوریج ملا پانی آتا ہے جو ناقابل استعمال ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائیے گا۔ روڈ پر واقع مصطفی آباد کے مکینوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے کیونکہ ان کے علاقے میں لگا واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ انتظامی غفلت کے باعث کئی ماہ سے فنی خرابی کا شکار ہو کر بند پڑا ہے اور انتظامیہ متعدد بار شکایات کے باوجود اسے فعال کرنے میں ناکام ہے۔ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا، یہ ان سے بات کر کے جانیں گے۔ بتائیں جی کیا کہیں گے آپ، یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے کیوں اتنے عرصے سے بند ہے، کیوں یہ چالو نہیں کیا جا رہا؟ پتہ نہیں، یہ انتظامیہ دی غفلت دا نتیجہ ہے۔ بڑی دفعہ اسی کمپلین کیتی ہے لیکن ساڈی کوئی بھی نہیں آواز سنتا۔ ٹوٹیاں اتنے چوری ہو گئی، سارا کچھ کوڑے دا ڈھیر بنتا پیا، کوئی انتظامیہ نہیں کر رہی۔ بالکل صاف پانی کے حصول میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے جو نلکے ہیں وہ چوری ہو چکے ہیں جبکہ اس کی جو مشینری ہے وہ بھی تباہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کی گئی مگر کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔
आला हुकाम से नोटिस लेकर फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का जो मुतालबा है वो मुस्तफ़ाबाद के मकीन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स की तकमील के बाद पार्क्स की बहाली का आगाज़। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरून लाहौर के पार्क्स का दौरा। MDPHA लाहौर राजा मंसूर भी हमरा थे। दौरे के मौके पर वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PHA ने क्रीम पार्क, गोल्ड ग्राउंड पार्क की बहाली के आगाज़ और वर्किंग प्लान बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने नेहरू पार्क, वापडा ग्राउंड और मियां मुंशी अस्पताल से मुतसिल ग्राउंड्स का भी दौरा किया। सूबाई वज़ीर का कहना था वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पार्क्स में बेहतरीन लाइट्स, ओपन जिम, ट्रैक और फूलों की इकसाम लगाई जाएंगी। ग्राउंड्स में खेलने के लिए फ्लड लाइट्स समेत पिच और कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। नौजवानों के खेल और सैर तफरीह के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फ्राहमी अव्वली तरजीहात में शामिल है। MDPHA लाहौर राजा मंसूर का कहना था ज़ेरे ज़मीन बनाए जाने वाले वाटर टैंक्स की तामीर के बाद तमाम पार्क्स को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का चौथा इजलास चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास में ई व्हीकल को फ़रोग़ देने, मादनियात और ग्रीन एनर्जी के प्रोग्राम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चौथा इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ ने की। इजलास में पंजाब में माहौल दोस्त और जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पैदावार में इजाफा और इसकी आवाम तक आसान सप्लाई पर अहम फैसले किए गए। पंजाब में पाई जाने वाली मादनियात पर भी अफसरान ने सिफारिशात पेश की। चेयरमैन PBIT का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का विजन जदीद तरक्की करता पंजाब है, जिसके लिए इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। जल्द लाहौर में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। पंजाब में निकलने वाली मादनियात से मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत किया जा सकता है। इजलास के इख्तिताम पर लाहौर में जारी मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। उधर पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का माली साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 56वां इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 54 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में लाहौर, सरगोदा, खानेवाल और शेखुपुरा में एक्वा बिजनेस हब्स के क्याम के लिए 49 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। जिला सरगोदा में लाहौर सरगोदा रोड पर डोर क्रिस्टल केमिकल मिल से जसवाल भाबरा जरिया मड रांझा कोट मोहम्मद रोड सड़क की बहाली के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए, जबकि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के काम के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी शामिल है। इजलास में इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मनसूबा और पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी यूनिट की तंजीम नौ के मनसूबों के वर्किंग पेपर्स की मंजूरी भी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड रफाकत अली, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। अब यहाँ पर बात करें लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट बाग बड़ा फैसला किया गया। रेलवे स्टेशन के सामने इन आउट सिस्टम एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। DGLD ने कहा लाहौर को 2026 में मजीद खूबसूरत बनाने के बेशतर मंसूबों पर काम जारी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट में बड़ा फैसला किया है। रेलवे स्टेशन के सामने इन आउट सिस्टम एयरपोर्ट तर्ज पर होगा। रेलवे स्टेशन के सामने सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए मखसूस लाइन दी जाएगी। सिटी 42 से गुफ्तगू में DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि लाहौर रेलवे स्टेशन को हकीकी मानों में लाहौर का आइकॉन बनाएंगे। की एक स्पेशल डायरेक्शन थी कि जो शहर का एरिया स्पेशली जो 3 किलोमीटर रेडियस अराउंड द रेलवे स्टेशन है उसको हम रीवैम्प करें और उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें। तो उसी सिलसिले में जब हमने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया तो उसमें क्योंकि रेलवे स्टेशन एक आइकॉनिक प्लेस है तो उसमें फिर जब हमने इसकी डेवलपमेंट शुरू की तो हमें एक चीज़ जो उसमें नज़र आई कि वो जो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे की बिल्डिंग के सामने से गुजरी, जिसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस भी है। तो हम उस पूरे एरिया की ना सिर्फ अपलिफ्ट कर रहे हैं बल्कि उसकी जो ट्रैफिक की जो सर्कुलेशन है उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह जो रेलवे स्टेशन है उसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जैसे एयरपोर्ट्स पे होती है उसी तरह की पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ विद द पार्किंग एंड ऑल अलाइड फैसिलिटीज़ वो बन जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूसी सफारत खाने के कल्चर, साइंस एंड एजुकेशन नताशी ग्लैब शोबन का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात की। ग्लैब शोबन और सदर लाहौर चैम्बर ने बाकायदा तौर पर रूसी ज़बान के कोर्स का इफ्तिताह किया।
सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, रूसी अज़ज़ी कौंसल जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मोहसन बशीर भी मौजूद थे। ग्लैब शोबा ने कहा कि मजबूत अवामी रवाबत देरपा दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद हैं। ज़ुबान सिर्फ राबते का जरिया नहीं बल्कि सकाफत, एतमाद और ताउन बढ़ाने का रास्ता है। ग्लैब शोबा ने मजीद कहा कि कारोबारी कम्यूनिटी के करीबी ताल्लुकात नए तिजारती मौके पैदा कर सकते हैं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि रूस एक बड़ी आलमी माईशत और पाकिस्तान के लिए उभरती हुई तजारती मार्केट है। पाकिस्तानी कारोबारी कम्यूनिटी तवानाई, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और IT में जॉइंट वेंचर कर सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम और जदीद कदम। महकमा जंगलात ने कुदरती आफात से निमटने और जंगलात के मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सूबे में कायम पहला कंट्रोल रूम जदीद डिजिटल सिस्टम के जरिए 16 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबे पर नजर रखे हुए है। जंगलात पंजाब में सूबे का पहला जदीद कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कंट्रोल रूम कुदरती आफात जैसे जंगलाती आग, गैर कानूनी कटाई और तजावुजात की बरवक्त निशानदेही के लिए कायम किया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए सूबे के मुख्तलिफ अजला में फैले 16,50,000 एकड़ जंगलाती रकबे की मुसलसल निगरानी की जा रही है। जदीद कैमरों, सैटेलाइट डाटा, GIS मैपिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी हंगामी सूरत हाल की फौरी इत्तला मुतलका फील्ड स्टाफ को दी जाती है। अब जो सिस्टम है विद इन नो टाइम हमारे पास डैशबोर्ड है जिसके ऊपर हमने वर्किंग किया, हमारी JS टीम ने डेवलप किया उसको। विद इन 5 मिनट्स हमारे पास एक अलर्ट जनरेट होता है। AI बेस्ड कैमरा सिस्टम है, जो हमें मैसेज आता है, देन हम फील्ड फॉर्मेशन को एक्टिव करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात कंवर लियाकत कहती हैं, कुदरती आफात से निपटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रैपिड रिस्पांस टीमें तश्कील दी हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे अमला मौजूद होता है जो डाटा मॉनिटरिंग और अलर्ट्स पर नजर रखता है। डिजिटलाइज फॉरेस्ट्री की तरफ हम चले गए हैं, जिसमें बाकायदा उसका मॉनिटरिंग सिस्टम है। 24 और जो है वो हेल्पलाइन काम कर रही है, जो कि 1084 जिसका नंबर भी है, जिसके ज़रिए डे नाइट जो है हम लोगों से कनेक्ट हैं, राब्ते में हैं। ड्रोन मॉनिटरिंग हो रही है और ऐसे इलाकों में ख़ुसूसन मॉनिटरिंग की जाती है जहां आग लगने के पहले वाक़यात माजी में हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जियो टैग प्लांटेशन की जा रही है। महकमा जंगलात के मुताबिक डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और मोबाइल एप्लीकेशंस के इस्तेमाल से फील्ड अफसरान और कंट्रोल रूम के दरमियान राब्ता मजीद मजबूत हो गया है। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दाखिलों का अहदाफ पूरा करने पर पैफ के मातहत 20,000 से ज्यादा पार्टनर स्कूलों में जाली इनरोलमेंट। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बेफॉर्म के बगैर दाखिल हजारों बच्चों के दाखिले मुस्तरद कर दिए। पैफ हुकाम का नॉट वेरीफाइड बच्चों की तस्दीक के लिए बेफॉर्म फौरी जमा करवाने का हुक्म। जाली इनरोलमेंट साबित होने की सूरत में मुतलका स्कूल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। दाखिलों का अहदाफ पूरा करने के लिए पैफ के मातहत 20,000 से ज्यादा पार्टनर स्कूल्स में जाली इनरोलमेंट की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बेफॉर्म के बगैर दाखिल हजारों बच्चों के दाखिले मुस्तरद कर दिए। बेफॉर्म के दाखिले पार्टनर स्कूल्स में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक किए गए थे। पैफ हुकाम के मुताबिक तालीमी 2025-26 के लिए नए दाखिलों की तस्दीक 12 जनवरी से की जाएगी। पैफ हुकाम ने नॉट वेरीफाइड बच्चों की तस्दीक के लिए बेफॉर्म की फौरी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पैफ की इंस्पेक्शन टीमें 12 जनवरी से स्कूल्स का विजिट करेंगी। जाली इनरोलमेंट साबित होने की सूरत में मुतलका स्कूल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। संतनगर में पार्कों की ताज़ीन और आइश के बाद मुतादिद पार्कों का भी इफ्तिताह। MPA मियां मरकूब ने मशीर वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह के हमरा इफ्तिताह किया। खजूर, फिरदौस, मर्दन, जौहरी पार्क की ताज़ीन और आइश मुकम्मल होने पर यह इफ्तिताह किया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक। इस वक्त संत नगर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर पार्क्स की तज़ीन और आइश के बाद पार्क्स का इफ्तिताह किया जा रहा है। MPA मियां मरगूब की जानिब से जो है वो पार्क का इफ्तिताह किया गया है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बताइएगा क्या कहेंगे, पार्क्स का इफ्तिताह किया गया है संत नगर के इलाके में? 4 मज़ीद पार्क्स का इफ्तिताह किया है संत नगर के अंदर, UC 57 में और 59 में। तो ये वो तोहफा है पार्क्स का, खूबसूरत पार्क्स का, कि इन कंजस्टेड एरिया के अंदर, कंक्रीट के शहर के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका जो कि अहलियाने संत नगर को बिलखसूस यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर वो बैठे हैं और टेंशन के इस माहौल के अंदर जो है ना वो एक ओपन एयर के अंदर एंजॉय करें, जहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट भी है, लाइटिंग भी है, फूल पौधे भी हैं, यहाँ पे जिम भी है, ओपन जिम भी है, बच्चों के लिए झूले भी हैं। तो ये वो सारी सहूलतें हैं कि एक मुनफरद
लोगों का यहाँ पर कहना है कि हमने पिछले 25-30 साल में इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी, और यकीनन ये एक यूनिक डेवलपमेंट है। और हम कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सरपरस्त हैं, जो सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, और उनका अपना ये हल्का इंतखाब है, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बार फिर अहलियान इलाका को ये तोहफा मुबारक। बिल्कुल जी, राशिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस मौका पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मियां नवाज शरीफ साहब के हल्का इंतखाब NA 130 के तमाम पार्क्स जो हैं उनको हम उनके जो रिहायशी हैं उनको ये मुबारकबाद देते हैं कि तमाम पार्क्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मियां नवाज शरीफ का वो ख्वाब था कि इन इलाकों में ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए ऐसी जगह हो जहां वो बैठ सकें, छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये पूरे इलाके के लिए एक नेमत से कम नहीं है। अहले इलाका की जानिब से भी इस इक़दाम को जो है वो खुशाइन करार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब सब्जाजार मेन बुलेवार्ड की लाइट सरसदरा से ख़राब है। अंधेरे में डूबा सब्जाजार मेन बुलेवार्ड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। स्ट्रीट लाइट्स की बंदश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया नाज, बताइएगा। शहर में अहम शाहराहें और बेशतर शाहराहें जो हैं वो अंधेरे में डूबी हुई हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि स्ट्रीट लाइट्स का मसला जो है वो संगीन होता चला जा रहा है, और बड़ी शाहराहों पर पोल मौजूद होते हैं लेकिन उनमें लाइट्स नहीं होती है। और इसकी बड़ी जो अहम बात सामने आती है वो यही होती है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही सड़कों को जो है इस मुकाम तक ला रही है कि वो अंधेरे में डूबी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी ख़ास तौर पर रात के औकात कार में मसाइल का सामना करना पड़ता है। मौजूद है इस वक्त सब्जाजार मेन बुलेवार्ड पर, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला जो है वो कॉमन होता चला जा रहा है। पूरी शाहराह के ऊपर जो है वो यही देखने में आता है कि तमाम पोल्स जो हैं वो अंधेरे में की नज़र हुए हैं, और कहीं पर पोल टेढ़े हैं जो कि खुदा न खास्ता आंधी के वक्त में या किसी तेज़ हवा की सूरत में खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। तो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त की जा रही है कि इस मेन बुलेवार्ड पर चूँकि नए असर नौ इस सड़क की जो है वो तामीर हुई है, तो इसके ऊपर जो है वो पोल्स पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि ये रोशन हो सकें और रात के वक्त में ट्रैफिक की रवानी में जो मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि MNA हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की मरकजी दफ्तर NA 129 आमद। हल्के के अवाम ने अपने मसाइल से आगाह किया। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने मुतल्लिका इदारों को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत की। MNA हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने मरकजी दफ्तर NA 129 में हल्के के अवाम से मुलाकात की। दरपेश मसाइल पर मुतल्लिका इदारों को जल्द अज जल्द इक़दामात की हिदायत जारी की है। इस मौके पर महमूद हकानी, मियां रज़ाक, मलिक औरंगज़ेब, शेख खालिद आफ्ताब, एहसन रफ़ीक, मियां अदनान, नवीद शहजाद, मियां आतिफ मौजूद थी। हाफिज फैज़ान, मलिक तारिक, मलिक आबिद, वसीम घड़ेवाल, नियाज अहमद नियाजी समेत दीगर भी मौजूद थे। फिरोजपुर रोड पर सड़क किनारे रात के पिछले पहर ठिठुरती सर्दी में शहरी गाड़ी में जूते बेचने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। सर्दी में हर शख्स लिहाफ में आराम करना पसंद करता है, वहीं मेहनत कश सर्द रातों में काम में मसरूफ दिखाई देते हैं। जवां साल मोहसिन भी जिम ट्रेनर होने के साथ रात के पिछले पहर जूतों का कारोबार करता है। मोहसिन का कहना है कि काम इंसान की अजमत को बढ़ाता है। बाइज्जत रोजगार कमा रहा हूँ जिस पे फख्र है। सभी लोगों को काम करना चाहिए जो आजकल का टाइम चल रहा है। सबसे पहले तो आपके बिल ही पूरे नहीं होते हैं उनको कवर करने के लिए आपको चाहिए कि आप साइड बिजनेस ज़रूर करें। मैं बेसिकली ट्रेनर हूँ। अभी हम सोच रहे हैं मजीद इसको और इंक्रीज करने का काम सोच रहे हैं कि इसको और इंक्रीज करें। साथ ही रेढ़ी बांध भी मोहसिन का हौसला बढ़ाते मसरूफे कारोबार नजर आते हैं। कहते हैं बेशक अब कारोबार कम, मजबूरियां ज्यादा हैं, लेकिन काम तो काम है जिसको हर हाल में करना है। गाहक भी मेहनत कश कारोबारी हजरात की खूब हौसला अफजाई करते हैं। मेहनत और जुस्तजू ही कामयाबी की जामिन होती है। यही वजह है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नई देते हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।